objectives and question answers are left. Chapter 16 question answers left, and chapter 17. And ma'am, chapter 17 is not yet started. Okay. Ma'am, and chapter 8. Chapter 8 is also left. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Who was teaching you? Ma'am, Mr. Brajesh, sir. Okay. Okay, don't worry. I will complete the chapter. 17 I have to start, na? Question also I will send No, you. ma'am. Question also I will send you. Okay. Okay, ma'am. Chapter Okay, 17 right now, major religion. Just I'm going to start chapter major religion. Okay, bachcho. In previous class, in class 6, you have studied about different religions. Now you have to, in this chapter, you have to start the major religion during medieval period. आपने पढ़ा ना medieval period, आप शुरू से पढ़ रहे हो medieval period के बारे में. So यहाँ पर medieval period में जो major religions थे, आपको उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो just I'm going to start this chapter in which we will learn about Islam, Sikhism, and different religious movements which started in India during 17th to 15th century. As you know that medieval period start from in India 8th to 18th century, but you have to read here the period about 7th to 15th century. Major religions between these periods means 7th to 15th century के बीच के जो periods थे उसके major religions के बारे में आज आप पढ़ोगे, ठीक है? Yes, ma'am. बच्चों आप लोग class 13 ज्वाइन करना because syllabus is left and it have to complete it. Islam. As you know that who believe in Islam? Religions. Who is the follower of this religion? Islam को कौन follow करते हैं? Muslim. Anyone? Muslim. Yes, Muslims. Yes, it's nice, Muslim. So Islam was founded by Prophet Muhammad. Islam was founded by Prophet Muhammad. Prophet Muhammad was born in Prophet Muhammad was born in Mecca in 507. मक्का में इनका जन्म हुआ था प्रॉफेट मोहम्मद का. प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था 570 CE में. और उसके बाद उनके अंकल उन्हें कहाँ लेकर आए थे? अरेबिया लेकर आए. Yes. Later on he married a widow under whom he was employed. उसके बाद एक उन्होंने क्या किया, एक विडो औरत के साथ शादी कर ली, उसी के अंदर वो काम करते थे, उस विडो लेडी के अंदर काम करते थे, उसी से उन्होंने शादी कर ली. At the age of 40 he got the light of wisdom, revelations while meditating in a cave near Mecca and declared himself the prophet of Allah. ठीक है, जब वो 40 years के थे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. ठीक है, जब उन्होंने मक्का की एक गुफा में मेडिटेशन कर रहे थे तो उन्हें नॉलेज, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. एंड देन ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. ठीक है, अल्लाह के दूत के रूप में उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया. इट इज बिलीव्ड दैट कुरान वाज रिवील्ड टू हिम बाय द गॉड्स एंजल गैब्रियल. मोहम्मद वाज अपोज्ड टू आइडल वर्शिप. ऐसा माना जाता है कुरान जो है उन्हें
इसको लाने वाले कौन थे? गैब्रियल थे। और मोहम्मद जो थे वो आइडल वर्शिप के विरुद्ध थे। आइडल वर्शिप क्या होता है? आइडल वर्शिप में मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। नानी खेला मोहम्मद कहते वॉज ना। नॉट, किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिएगा। मैम Muhammad was not liked by the Orthodox and rich people of Mecca. He moved to Medina, where he was warmly welcomed by the people. ठीक है, मोहम्मद was not liked by the Orthodox people. Orthodox people रूढ़िवादी लोग, रूढ़िवादी लोग या ऑर्थोडॉक्स पीपल हम उनको कहते हैं, they don't want to change the present position. नहीं, वो चेंज नहीं करना चाहते, किसी नई चीजों में बिलीव नहीं करना चाहते, वैसे लोगों को हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। तो मक्का के जो रिच पीपल थे और ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, उनको तो मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसलिए वो कहाँ चले गए? मदीना चले गए। और जहाँ पर मदीना में उनका वार्म वेलकम किया गया, यानी लोगों ने बहुत ही खुश हुए, लोगों ने इन्हें वेलकम किया। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद 632 CE, Abu Bakr, Prophet Spain was the first adult to embrace Islam. He became a Khalifa. The Khalifa enjoyed full political and religious power. प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद अबू बकर जो थे, वो जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के फ्रेंड थे, उसने इस्लाम को आगे बढ़ाया और वो खलीफा बन गए। खलीफा उस वक्त वैसे लोग होते थे जिनके पास फुल पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर, जिनको था धार्मिक पावर भी था और उनके पास राजनीतिक पावर भी था, यानी कि वो लोग शासन में भी इम्पोर्टेंस रखते थे। बहुत आपने पढ़ा होगा मलिक्स के बारे में, और दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा होगा कि ये जो उलेमास थे, मुल्लास थे, इन सब का शासन में काफी इम्पोर्टेंस होता था। तो ये खलीफा का भी काफी इम्पोर्टेंट पर्सन होते थे। One, do you know here, Mecca and Medina are the two holy places, holy cities of pilgrimage for the Muslims. यहाँ पे मक्का और मदीना की यात्रा करने के लोग, जैसे हिंदू धर्म के लोग डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस पर जाते हैं, उसमें मुस्लिम्स भी मक्का और मदीना जाते हैं, क्योंकि वो इनके लिए होली प्लेसेस है। Islam represented faith in Allah and the prophethood of Muhammad. इस्लाम ये बताता है कि अल्लाह में विश्वास करो, ठीक है, किसमें विश्वास करो? अल्लाह में, और प्रॉफिट मोहम्मद से में विश्वास करो, उनकी वाणी में विश्वास करो, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों में विश्वास करो। प्रॉफिट मोहम्मद प्रूव्स दैट अल्लाह punishes us for bad deeds and reward us for good deeds. प्रॉफिट मोहम्मद का कहना था कि अगर हम गलत काम करते हैं तो अल्लाह हमें पनिश करता है, और अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह हमें रिवॉर्ड करेगा। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में भी मानते हैं कि अच्छे काम करने से इंसान स्वर्ग जाता है और गलत काम करने से उसे नरक जाना पड़ता है। लाइक दैट आप ऐसा सुनते होंगे। तो ये इसी तरह से सारे धर्म, कोई भी धर्म है, कोई भी धर्म हमें गलत चीजें नहीं सिखाता, क्योंकि सारे धर्म हमें अच्छे काम करने के लिए इंकरेज करता है। इसलिए इस्लाम धर्म भी कहता है कि ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, गलत काम करने वाले को पनिश करता है और अच्छे काम करने वाले को अवार्ड देता है। He also propagated the equality. उन्होंने समानता के कॉन्सेप्ट पर भी काफी प्रचार किया, मतलब सारे मनुष्य एक समान है, ठीक है। The Quran says that to regulate one's life as a true Muslim, a person has to be observe the following 5 principles in his life. कुरान कहता है कि एक सच्चा मुस्लिम को अपनी रेगुलर लाइफ में ये 5 चीजें जो है, 5 प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना चाहिए, पड़ेगा नहीं बल्कि फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इज दैट he should always proclaim oneness of God, that is Allah, and from Muhammad as his prophets on this earth. इसे हर मुस्लिम को चाहिए कि वो एक ही गॉड में विश्वास करे, और वो गॉड कौन है? अल्लाह, ठीक है। और मोहम्मद प्रोफेट के रूप में वो मोहम्मद को स्वीकार करे। देखते हो कि मुस्लिम समाज में प्रोफेट को बहुत ही प्रेयर भजन भी होता है, क्योंकि लोग उन्हीं से प्रोफेटहुड में विश्वास करते हैं। सेकंड इज एवरी मुस्लिम शुड ऑफर प्रेयर 5 times daily and on Friday afternoon in a mosque with others.
हर मुस्लिम को चाहिए कि दिन भर में वो 5 बार नमाज पढ़े, ठीक है, और फ्राइडे आफ्टरनून में वो जाकर के मस्जिद में भी नमाज पढ़े। वन शुड गिव एल्म्स टू द पुअर, हर मुस्लिम को चाहिए कि वो गरीबों को दान करे। On fourth is every Muslim should take fast or roja during the holy month of Ramadan after dawn to dusk. हर मुस्लिम को चाहिए कि रमजान महीने में वो सुबह से dawn to dusk यानी कि सुबह सूरज की किरणें निकलने को होती है उस समय से लेकर सूर्यास्त होने तक वो क्या करे, फास्ट करते। आप देखते हैं रोजा रखते हैं मुस्लिम। One should, if possible, go on a hajj to Makkah at least once in his lifetime. अगर हर एक मुस्लिम को चाहिए अगर संभव हो तो एक बार वो हज पे जाए। कहाँ पे जाए? हज पे जाए, ठीक है। हज पे कहाँ जाते हैं लोग? मक्का और मदीना जाते हैं। मैंने अभी बताया होली प्लेसेस में देखा वही है, तो होली सिटीज में जहाँ पे वो लोग जाते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो वो मक्का जाए। The greatest contribution of Muhammad was that he united the scattered Arab Empire under one faith. The conflict among the successors led to the creation of two main sects within Islam. These were the Sunni and Shia. सबसे बड़ा प्रॉफिट मोहम्मद का कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि अरब एम्पायर जो कि बिल्कुल विखंडित था, टुकड़े में बटा हुआ था, उसको उन्होंने एक फेथ के अंदर लाया, एक विश्वास के अंदर लाया। और लेकिन बाद में इस धर्म के जो सक्सेसर्स थे इसके, उनमें आपस में कंफ्लिक्ट होता गया और बाद में इस्लाम धर्म जो था वो दो भागों में बट गया, शिया एंड सुन्नी। ठीक है, आप लोग भी सुने होंगे डाप। अब बताओ, who was the founder of this religion? Prophet Muhammad. Prophet Muhammad. Very good. Prophet Muhammad was the founder of this religion, and he was the what are the name the holy places of holy cities of pilgrimage for the Muslims? Makkah and Makkah, Medina. Medina. Makkah and Medina. Where did Prophet Muhammad born? उनका जन्म हुआ था प्रॉफेट मक्का। मोहम्मद का? Makkah. यस, चलिए बहुत सारी चीजें याद आ गई। और आज आप जानते हो व्हाट इज होली बुक्स ऑफ मुस्लिम्स? Yes, ma'am. Quran. Quran. So one do you know is given Quran written in Arabic provides the Muslim believers with everything that they need to lead a good and pious life. कुरान में वो सारी चीजें लिखी हुई है जिससे कि आदमी एक अच्छा जीवन जी सके। तो and at last Islam was divided into two sects. What were their names? Sunni and Shia. Very nice, बहुत अच्छा, very good. So this was the religion, first religion that was in medieval period. Second is Sikhism. The origin of Sikhism can be traced back to the time of Guru Nanak, the first Guru of Sikhs. He was born in 1469. Since childhood, he was very happy in the company of saints and sufis. ये जो सिख धर्म का ओरिजिन है, जो हम स्टार्टिंग है, ये हम कब से देख सकते हैं? गुरु नानक के टाइम से देख सकते हैं। ठीक है, गुरु नानक जिन्हें सिखों का पहला गुरु कहा जाता है, जिनका जन्म 1869 में हुआ था और बचपन से ही गुरु नानक को साधु संतों की संगति अच्छी लगती थी, तो साधु संतों के साथ रहना उन्हें बहुत पसंद था। He propagated that to be one with God, one has to be egoist and denounce lust for worldly pleasures. He believed in Nirankar Brahma or God. For him, Ram and Rahim were the same. He believed in selfless and honest service to humanity. वो उनको मानना था कि अगर आप गॉड में आपको गॉड से आपको मिलना है तो आपको ईगोलेस होना चाहिए। ईगोलेस मतलब आप में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए और दुनिया की कोई भी चीजों से आपको लगाव नहीं होना चाहिए। दुनिया की
सुख, आराम, खुशियां, इनसे आपको लगाव नहीं होना चाहिए, तभी आप भगवान में मिल सकते हैं। इनका कहना था वे विश्वास करते थे निरंकार ब्रह्म में। निरंकार, निरंकार आपने एमएस में पढ़ा होगा ना, ईश्वर निरंकार है। निरंकार का क्या मतलब होता है? जिसका कोई आकार नहीं है। निरंकार मीन्स जिसका कोई आकार नहीं है, यानी कि ईश्वर का, हाँ, इसका कोई आकार नहीं है। ईश्वर वो है जिसका कोई आकार नहीं है। वैसे निराकार गॉड में भी बिलीव करते थे गुरु नानक। फॉर हिम, उनके लिए राम और रहीम दोनों सेम थे, और वो सेल्फलेस और ऑनेस्ट सर्विस, मानवता की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करना, ह्यूमैनिटी की सेवा करना, इसमें वो बिलीव करते थे। ठीक है। और आज भी सिखिज्म में यही सब थिंकिंग है। आज भी लोग सेवा भाव को बहुत इम्पोर्टेंट देखते हैं। अगर आप गुरुद्वारे में जाते हो तो देखते हो, और कुछ लोग वहाँ झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, ये सब उनका सेवा होता है। किसी को चप्पल साफ करते हैं, धोते हैं, अरेंज करते हैं, एवरीथिंग आप जो देखते हो तो सेवा भाव से किया जाता है। क्योंकि सिखिज्म जो है तो इसी चीज को लेकर के ही है, इसी चीज में विश्वास करता है। गुरु नानक स्टैब्लिश संगत एंड पंगत। गुरु नानक संगत और पंगत established की संगत is the religious gathering where everyone recites the name of God without any distinctions of caste, creed, color or race. संगत वो रिलीजियस गैदरिंग है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के भगवान के नाम का डिसाइड करते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी नस्ल के हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी रेस के हो, किसी भी जाति के हो, मतलब बिना कोई भेदभाव का। गुरु नानक जो थे वो किसी भी तरह का जाति, धर्म, किसी के आधार पर भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। तो वो संगत इसलिए उन्होंने बनाया था। संगत में रिलीजियस गैदरिंग होता था जहाँ पे लोग भगवान का नाम लेते थे, चाहे वो कोई ही क्यों ना हो। And Pangat is eating longer by sitting together in a row without any distinctions of rich or poor, caste or creed, race or color. पंगत का मतलब होता है लंगर जो होता है, गुरुद्वारे में आज भी लंगर होता है, जिसमें बहुत सारे लोग, लंबा सा उनका बिछा रहता है, जिसमें बहुत सारे लोग बैठकर, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, वहां बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। गुरुद्वारे का लंगर, वो लंगर और जिसको पंगत कहते हैं, ये लंगर जो होता है इसको पंगत कहते हैं। पंगत में एक साथ रो में बैठ करके सारे तरह के लोग खाना खाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। तो ये संगत और पंगत was established by Guru Nanak. Sangat is a religious gathering where everyone can recite the name of the God without any distinctions, and Sangat is eating langar by sitting together without any distinction of which poor, caste, creed, anything. Okay. Guru Nanak is three Kirtans, self-composed Bani, and songs of other saints. Sikhism is based on three Shishya traditions. The scriptures of Sikh is the Adi Granth. The holy scriptures is their Guru. The hymns are known as Guru Bani or Shabad. Sri Guru Granth Sahib is the source of divine wisdom for the Sikhs. गुरु नानक जो थे वो जो उपदेश देते थे वो कीर्तन के रूप में होता था, या बानी, उनके अपनी कविताएं, अपने दोहा उन्हें कंपोज करते थे, जिनको बानी कहा जाता था। और कुछ संत जो थे वो सॉन्ग बनाते थे और वो गा करके लोगों को पेश किया करते थे। सिखिज्म जो था वो गुरु शिष्य ट्रेडिशन में बिलीव था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिखों के गुरु थे, और इसका जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है आदि ग्रंथ। ठीक है, और इनके जो भजन है, जो हाइम्स है, वो उन्हें गुरुबानी या समझ कहा जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें हर तरह जितने भी सिख के डिवाइन कीर्तन है वो उसमें लिखे गए हैं। गुरु नानक passed away in 1539 CE at Chakkati. According to Sikhism, a true Sikh or Sikh is one who believes in one God, has complete faith in 10 Gurus, who follows Sri Guru Granth Sahib and acts in accordance with the message of Guru Bani. Every Sikh should be baptized by taking Amrit. इसके बाद 1539 में
गुरु नानक का डेथ हो गया करतारपुर में, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सिख धर्म के अनुसार एक सच्चा सिख वो होता है जो कि एक गॉड में विश्वास करता है। उसके अपने 10 गुरु में, सिख में 10 गुरु हैं, इसलिए सिख गुरु सिख ट्रेडिशन में बिलीव करता है। 10 गुरु में विश्वास कंप्लीट फेथ नहीं रहता है। साथ में गुरु ग्रंथ साहिब जो उनके पवित्र बुक है उनको वो फॉलो करता है, उनके अकॉर्डिंगली वो काम करता है। और गुरु बानी में जो मैसेज, गुरु बानी के थ्रू, कीर्तन के थ्रू जो मैसेज उन्हें मिलता है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है। हर सिख को चाहिए कि वो अमृत धारण करे। अमृत का मतलब होता है कि 5 के, हर एक सिख को 5 के धारण करने होते हैं। के में है केश है, कंघा है, कड़ा है, कृपान है ना, कचीरा कचीरा है, अच्छा अच्छा कहते हैं कि लोग ऑरेंज ऑरेंज पहने रहते हैं वो धारण करते हैं, तलवार गले में लटकाए रखते हैं, बाल उनका बड़ा होता है, छोटी छोटी इसमें कंघी वो हमेशा लगाए रखते हैं। और कृपान तो मैंने बताया कि गले में छोटा सा कृपान तलवार वो आगे रहते हैं। सेकंड गुरु जो थे, पहले गुरु का नाम कौन था? फर्स्ट गुरु ऑफ सिख कौन थे बेटा? Guru Nanak. Nanak. गुरु नानक। गुरु नानक अब देव। सेकंड गुरु जो थे वो है गुरु अंगद। गुरु अंगद कलेक्टेड द हैंड्स ऑफ गुरु नानक इन गुरुमुखी स्टेट। गुरु अंगद ने गुरु नानक के जो भजन थे उसको उन्होंने कलेक्ट करके गुरुमुखी स्टेट में लिखा। गुरु रामदास द होली टैंक्स नोन एज अमृतसर। गुरु रामदास ने एक पवित्र टैंक खोदा था, तालाब बनवाया था, उस तालाब का नाम था अमृतसर। द सिटी ऑफ अमृतसर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट। और उस तालाब के नाम से ही उस शहर का नाम अमृतसर पड़ा। अमृतसर, हम बहुत जानते हो कि पंजाब में अमृतसर है, लेकिन अमृतसर का नाम कैसे पड़ा? एक होली टैंक बनवाया गया था, पवित्र तालाब बनवाया गया था गुरु रामदास के द्वारा, और उस तालाब का नाम रखा गया था अमृतसर। उसी अमृतसर से उस शहर का नाम पड़ा। गुरु अर्जुन देव constructed गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब in the center of the tank. गुरु अर्जुन ने उस टैंक के बीचों बीच एक गुरुद्वारा बनवाया, गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब, ठीक है। और इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। आप गोल्डन टेम्पल का जब भी फिगर देखते हो, गए हो नहीं गए हो, बट फिगर आप देखते हो कि बीच में टेम्पल है, चारों तरफ टैंक है, देखे कि नहीं देखे हो? गोल्डन टेम्पल का फोटो देखे हो तुम लोग? यस मैम। यस मैम। Yes, देखे ma'am. ना? देखते ना कि तालाब के अंदर है वो। तालाब बनवाने वाले थे गुरु रामदास। उस तालाब का क्या नाम मैंने बताया? Amritsar. अमृतसर। अमृतसर। वेरी नाइस। और उस तालाब के अंदर मंदिर बनवाया गया गुरु अर्जुन देव के द्वारा। उन्होंने गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब बनाया था उस टैंक के बीचों बीच, ठीक है। और बाद में इसी का नाम पड़ गया गोल्डन टेम्पल, ठीक है। गुरु हरगोविंद कंस्ट्रक्टेड द अकाल तख्त और द थ्रोन ऑफ गॉड नियर द गोल्डन टेम्पल। उसके बाद गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त बनवाया, गोल्डन टेम्पल के पास अकाल तख्त बनाया। अकाल मतलब थ्रोन मतलब क्या होता है? सिंहासन, भगवान का जो आसन होता है उसको लोग अकाल तख्त कहते हैं। ये गोल्डन टेम्पल के नजदीक बनवाया गया। गुरु तेग बहादुर was involved in fighting against the operation. हाँ, Guru Tegh Bahadur was involved in fighting against the oppression by the Mughals. He inculcated courage among the Sikhs to fight against the atrocities of the Mughal rulers. Guru Tegh Bahadur जो थे वो मुगलों से फाइटिंग कर रहे थे, क्योंकि वो मुगल जो उनके साथ अत्याचार कर रहे थे उन्हें वो बर्दाश्त नहीं करना था। इसलिए उन्होंने सिखों को इनकरेज किया कि वो मुगलों की क्रूरता, और सिखी का मतलब होता है क्रूरता, तो उनकी अक्रूरता के अगेंस्ट वो सिखों से फाइट करे, वो सिखों ने मतलब मुगलों से वो फाइट करे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि वहाँ के लोग जो है वो
बहुत अच्छे सैनिक भी होते हैं और बहुत कभी कभी उनका फौज डांस में भी देखोगे आप तो तलवारबाजी बहुत होता है, ठीक है, तो एकदम बहुत स्किल्ड होते हैं इस मामले में। लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड द खालसा पंथ at Anandpur, popularly known as Takht Sri Kesar Sahib, on the day of Baisakhi in 1690। जो इसके अंतिम गुरु थे उनका नाम था गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का नाम आपने सुना है ना, सुना है कि नहीं? Yes, ma'am. Guru Gobind Singh. The last Yes, one. ma'am. जो सबसे अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु थे। कितने गुरु थे? टोटल 10 थे ना। 10वें गुरु में थे लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने खालसा पंथ बनाया था जिसको एकदम लास्ट में। तख्त श्री केसरगिर साहिब कहा जाता है और ये वैसाखी के दिन 1699 में ये बनाया गया था। One do you know here? So every Amritdhari Sikh has to have all the 5 Ks on his body all the time. अभी मैंने बताया था ना, अमृत का मतलब होता है 5 Ks धारण करना है, हर सिख को 5 K धारण करना है, and they all are the symbols of Sikhism. So they are K, Sangha, Kada, Kachra and Kirpan. ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम कितना है? 10 से 1 Ma'am, 10 minutes. हाँ, तो we can start bhakti moments also, ठीक है। भक्ति means complete submission and devotion to God. First you should know तो भक्ति मोमेंट। भक्ति मोमेंट में भक्ति का क्या मतलब है कि भगवान में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देना, ठीक है। कंप्लीट डिवोशन, कंप्लीट सबमिशन टू गॉड। भक्ति मोमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द medieval period, but it should can be traced back to the Vedic period. भक्ति मोमेंट जो है वो medieval period में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका रूट जो है, इसकी जड़ें जो है वो medieval period की नहीं है बल्कि वैदिक पीरियड की है। वैदिक पीरियड कौन से पीरियड में आता है बच्चों? क्या ना? वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड कब आता है बच्चे? एंशियंट पीरियड। हिस्ट्री को आपने देखा तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो एंशियंट पीरियड में आता है वैदिक पीरियड। पहले एंशियंट पीरियड है अर्ली मैन से लेकर के वैदिक पीरियड तक। तो ये पीरियड जो है वो एंशियंट पीरियड हो गया। उसके बाद 8th से 18th सेंचुरी के पीरियड को मेडिवल पीरियड कहते हैं, और इसके बाद जो पीरियड आएगा वो मॉडर्न पीरियड हो जाएगा। वो जहां से आपका ये चैप्टर एंड होता है क्लास 8 में, वहीं से आपको स्टार्ट होगा, ठीक है। वो आपको मॉडर्न पीरियड पढ़ना है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि भक्ति मोमेंट जो है वो वैदिक एज से ही स्टार्ट हो गया था। Bhakti saints believe in worship of God, that is formless, यानी निरंकार, omnipotent, omnipotent and omnipresent। भक्ति saints ईश्वर की फॉर्मलेस है, निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, omnipotent है, यानी कि जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र है, omnipotent यानी सभी जगह है, omnipresent मतलब सभी जगह सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, ठीक है। जो हम लोग आज समाज में पढ़ते हैं वही चीजें हैं। They also denounce idol worship, ये idol worship भी नहीं करते थे। Bhakti movement started in the South Tamil region during the 7th and 8th century. भक्ति मूवमेंट सबसे पहले साउथ में तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था 7th to 8th century में। It preached devotion and loving relationship between devotee and the God to attend mass. ये विश्वास करते थे कि अगर भगवान और भक्त में पूरी तरह से डिवोशन, पूरी तरह से उनके बीच एक रिलेशन क्रिएट हो जाता था, उसको वो विश्वास करते थे ईश्वर और भक्त में, ठीक है।
जब ईश्वर और भक्त में एक रिलेशन बन जाता है, बन जाएगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता था। The Alvars, Vaishnavites, and the Nanas and Savitis condemned the rigidity of casteism and taught the lesson of love, devotion, and equality. ठीक है, Alvars और Nanas ये धर्म की रिजिडिटी का निंदा करते थे। अलवर्स वो होते थे जो कि वैष्णव धर्म का फॉलोवर थे, विष्णु की पूजा करते थे। नैनर्स वो थे जो शिव भगवान शिव के भक्त होते थे। तो ये दोनों ही कास्टिज्म की रिजिडिटी को वो निंदा करते थे। ठीक है, उनका पहले आपने पढ़ा होगा कि वैदिक पीरियड में लोग अपने कर्म को बदल करके अपने कास्ट को परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सब रिजिडिटी हो गया। जो जिस वर्ण में जन्म लेता है वो उसी वर्ण का रहेगा, उसी जाति का रहेगा। तो जाति सिस्टम रिजिड हो गया, कोई किसी जाति में जाति के मामलों में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता था। तो इसलिए रैशनलिटी और सेविटीज यानी अलवास और नैनाज जो थे वो इस रिजिडिटी की निंदा करते थे और लोगों को क्या शिक्षा देते थे? प्यार से रहने की, ईश्वर में अपने आप को डिवोटेड करने की, एक दूसरे को इक्वल मानने की, ये सारी शिक्षा देते थे। The Bhakti Sangh used local language to preach their message. पूरे भारत में जितने भी भक्ति संघ थे वो जहाँ पर जाते थे उसी के लैंग्वेज में वो उपदेश दिया करते थे। They discarded rituals and sacrifices to create वो जितने भी रीति रिवाज या भगवान के नाम पे जो सेक्रीफाइसेस दी जाती थी, बलि वगैरह दिया जाता, उस सबको वो निंदा करते थे। और दे डिस्कार्ड रामानंद took the idea of bhakti to the north। और जितने भी जो भक्ति श्रेष्ठ थे अपने भक्ति के विचारों को अलग अलग दिशा में लेकर के नॉर्थ में रामानंद भक्ति के भक्ति लेके मैम सुपरस्टिशंस मतलब मैम अंधविश्वास। ठीक है, यस वो भगवान श्री राम में विश्वास करते थे। ठीक है, रामानंद जो थे वो श्री राम के भक्त थे और उनमें पूरी तरह से वो डिवोटेड थे, भगवान के भक्ति में वो लीन जाते थे। कबीर और रविदास ये दोनों अलग अलग धर्म के थे, दोनों ही इनके शिष्य थे। श्री रामानंद के शिष्य कौन? कबीर और रविदास, दोनों अलग अलग धर्म अलग अलग जातियों के लोग थे, लेकिन वो भी उनके ही शिष्य थे श्री रामानंद के। भक्ति सेंस जो थे वो कास्ट सिस्टम यानी अंधविश्वास, नैरो माइनस यानी संकीर्ण सोच, इन सबकी वो निंदा करते थे, सबकी वो विरुद्ध, वो जातिवाद को नहीं मानते थे, अंधविश्वासों को विरुद्ध बात करते थे, अंधविश्वासों का वो खंडन करते थे। और जो संकीर्ण लोगों की सोच थी, छोटी सोच जो थी, इसकी भी निंदा करते थे। कबीर और नानक हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर हमेशा उपदेश दिया था। नीचे दूरी में कबीर composed padas and doha in the praise of supreme God। कबीर जो थे वो भगवान के प्रशंसा में पद और दोहा दोनों लिखा था उन्होंने। It is said that when he died, his Hindu and Muslim followers started fighting about the last rites. When they lifted the clothes covering his body, they only found flowers। ऐसा कहा जाता है कि जब कबीर की डेथ हुई तो उनको उनके फॉलोअर हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, दोनों ही उनके अंतिम कार्यक्रम जो होता है आफ्टर डेथ जो होता है, जो अंतिम क्रियाक्रम जो होता है उसके लिए लोग लड़ रहे थे। हिंदू चाहते थे कि उनके अनुसार हिंदू रीति रिवाज से कबीर का अंतिम संस्कार हो, तो मुस्लिम चाहते थे कि अंतिम संस्कार कैसे हो, उनके अनुसार हो, वो दफन करते हैं तो वैसे करें। लेकिन जब काफी विवाद के बाद जब कपड़े हटाए गए जिसके नीचे बॉडी जिनका पड़ा हुआ था, वहां पे उनका बॉडी नहीं था बल्कि फूल थे, और उन फूल को हिंदू और मुस्लिम ने आपस में बांट लिया और दोनों ने अपने अपने तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया। ठीक,
थोड़ा सा इसमें और है, आई डोंट नो 3 minutes is left. So many legends are prevalent about the fate, birth, life and death of Kabir, one of India's most quoted poet and mystic. बहुत सारी बातें उनके बर्थ, उनके जीवन, उनके लाइफ, उनके डेथ पर बहुत सारी बातें, कबीर के लाइफ और डेथ और बर्थ पर बहुत सारी बातें कही गई है। इंडिया के सबसे एक महान और मिस्टिक पोएट के रूप में उन्हें जाना जाता है। It is believed that he was actually the son of Brahmin leader who abandoned him, and that he was found by a Muslim leader named Miri who adopted the boy. Proud formally advocated. He learned to write was Rama. तो वो किनके बेटे थे? एक ब्राह्मण विद्य के बेटे थे जिन्होंने उसे त्याग दिया था, और इनका पालन पोषण करने वाले एक मुस्लिम लेबर थे जिसका नाम था नीरू। उन्होंने इस बच्चे को आया लिखाया, उसे वीविंग करने की कला सिखाई, क्योंकि वो खुद लेबर थे। नीरू जो थे वो खुद वीविंग की कला सिखाई। उसके बाद उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत महान पोएट जाने जाते हैं कबीर, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें एक ही वर्ड लिखने आता था और वो था राम। एक ही वर्ड वो लिख सकते थे, तो वो वर्ड था। The worship of Rama was made popular by Tulsidas and Rao. Chaitanya Mahaprabhu, Mirabai, Narsim Mehta, and Surdas were the ardent devotees of Krishna. They worshipped Krishna with love. Totally set aside. Yes, ma'am. ठीक है, तो तुलसीदास ने सबसे ज्यादा फेमस की नॉर्थ में, चैतन्य महाप्रभु ने उनकी पूजा बंगाल और उड़ीसा में फेमस की है। उसके बाद मीराबाई ने राजस्थान में, Ma'am, time is मीराबाई over. लेकिन चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और नरसिंह मेहता और Thank you. सूरदास ये सब थे कृष्ण के भक्त थे। रुको, ये सब कृष्ण के भक्त थे। कौन कौन कृष्ण के भक्त थे? मीराबाई, Chaitanya Mahaprabhu, Narsin Mehta, and Surdas. They all are the devotee of Krishna. They worship Krishna with love, devotional songs, and dance. Caste and creed was totally set aside. वो भगवान कृष्ण की पूजा प्यार से डिवोशनल सॉन्ग गा करके, डांस करके, अपने मीराबाई को सुना होगा। मीराबाई मंदिर में ही रहती थी, श्री कृष्ण के मंदिर में ही रहती थी वो। तो ये सब चीज था कि लोग जाति और नस्ल को हटा करके लोग भगवान के भक्त में लीन रहते थे, मतलब लोग भक्ति सेंस, और वो पूरी तरह से वो डिवोटेड होते थे। तो दिस वाज टुडेस क्लास। बच्चों आपको बताना नहीं चाहिए ना बच्चों, आप पहले ही क्लास छोड़ने लगते हो, क्यों? क्लास तो अपने आप खत्म हो जाएगा ऑन टाइम।